الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے محبوب بندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی عطا فرمائی، جس کو اختیار کر کے ہم دنیا آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرتے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ جل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ قرآن تھراپی جس کے ذریعے سے اس وقت الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ استفادہ کر چکے ہیں اور بغیر ادویات کے اپنے آپ کو شفا یابی سے ہمکنار کر چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے امراض جن امراض کے اوپر ابھی تک سوالیہ نشان ہے کہ اس کا کیا حل ہوگا، اللہ جل شانہ کے فضل سے، اللہ جل شانہ کے کرم سے، قرآن مجید کی برکات سے انہیں فائدہ ہوا اور بیماریوں سے صرف محفوظ ہی نہیں ہوئے بلکہ بیماریوں کا جڑ سے خاتمہ بھی ہو گیا۔ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے، طب نبی کے ذریعے سے لمحہ لمحہ ہمارے لیے گائیڈ لائن موجود ہے۔ ابھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس گائیڈ لائن کو کتنا اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں، اور جتنا عمل میں لے کر آئے اتنا ہمیں اس سے فائدہ ہونے لگتا ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، یہ چیزیں ہمیں سننے سمجھنے کو ملتی ہیں، لیکن ہم رواجی طور پر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آدھ دفعہ استعمال کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس میں ہے تو برکت تو ہے لیکن باقی چیزیں بھی ضروری ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس پہ ڈاکٹر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو صرف دعا ہی کیجیے، تو اس وقت پھر بہت جذبے کے ساتھ، بہت کیفیت کے ساتھ ہم دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خود بھی دعا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں، اور بزرگوں سے بھی دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ اس وقت ہمیں چونکہ اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا فیل ہو چکی ہے، اب اگر کوئی راستہ ہے تو صرف اللہ جل شانہ کی وہ ذات ہے جس نے بیماری کو پیدا کی ہے، وہ اس لیول کے اوپر بھی جا کے شفا دے سکتی ہے۔ لیکن اگر وہی جذبہ، وہی کیفیت جو بالکل آخر میں ہمارے پاس ہوتی ہے، اگر وہی جذبہ، وہی کیفیت ہمارے پاس ابھی آ جائے تو ہم بہت سارے امراض کو ریکور بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے امراض میں شفا یابی بھی پا سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قبض کی وجہ سے اس کا علاج کیا ہے اور اس کا ہم تدارک کس طرح سے کرتے ہیں، اور قبض کے معاملے میں ہم کس غلط فہمی کا شکار ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے صحیح آسن علاج کی ضرورت ہے۔ قبض، اسے ام الامراض کہا گیا ہے، گویا کہ ہر مرض کو جنم دینے والی بنیادی وجہ قبض ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کا جائزہ لیں، ان کے کھانے کے طرز عمل کو دیکھیں، کھانے کے انتخاب کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں استعمال میں لائی ہیں اور جن غذاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ غذائیں قبض کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی، ان کی وجہ سے قبض آتی ہی نہیں۔ تو جب انسان قبض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں، اور بہت سارے امراض جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں قبض کی وجہ سے ان میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ سو سمپل، اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے اور اسے قبض رہنے لگے تو شوگر کا مرض جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا ہے۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا مرض جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے قبض رہنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر کسی کو کولیسٹرول کا ایشو ہے، کسی کو موٹاپے کا ایشو ہے، کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے، کسی کو کڈنی کا ایشو ہے، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس مرض کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں یہ امراض نہیں ہے، وہ ان امراض کے اندر مبتلا نہیں ہے، لیکن انہیں قبض رہنے لگتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ ان امراض میں آ جاتے ہیں۔ قبض کے جب علاج کیا جاتا ہے تو اس کا علاج عمومی طور پر ایک ہی پہلو سے کیا جاتا ہے، وہی ہوتا ہے کہ جس کسی کو قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ مریض فوری طور پر اس قبض کو توڑتا ہے۔ اس مریض کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس قبض رفع ہو جائے، لہذا اس کے لیے وہ قبض کشا دوائی استعمال کرتا ہے،
اور قبض कुशा दवाई जब इस्तेमाल करता रहता है तो कब्ज कुशा दवाई के इस्तेमाल करते रहने की वजह से उसको कब्ज मुस्तकिल रहती है और रफ्ता रफ्ता आज हल्की सी दवा से उसकी कब्ज टूट जाती है, कुछ दिनों के बाद जो है वो उस दवा को उसे तेज करके लेना पड़ता है, हत्ता कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब तक हम कब्ज का इलाज करने के लिए कब्ज को तोड़ते रहेंगे तो कब्ज का इलाज नहीं होगा। दर हकीकत कब्ज किन वजूहात की बिना पे होती हैं? अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो जिस्म के अंदर जिगर की वजह से, पित्ते की वजह से अगर बाइल सिक्रेशन जिस्म में कम दाखिल हो रही हो, जो कि हमारी आंत के अंदर बाइल ऑयल की वजह से एक सिक्रेशन डेवलप होनी होती है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस को इन्हांस करती है, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन अच्छी होती है। अगर ये कम हो जाए तो इसकी वजह से कब्ज जो है वो होने लगती है। इसी तरह आंतों में अगर खुश्की पैदा हो जाए तो उसकी वजह से भी कब्ज होने लगती है। तेज मसाला जात के इस्तेमाल की वजह से भी कब्ज का मसला दरपेश आता है, कब्ज डेवलप होती है। जितने ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसकी वजह से भी कब्ज होती है। और कब्ज की एक वजह होती है कि आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, आंतों की जो हरकत है वो कुदरती तौर पे कम हो जाती है। ये एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से कब्ज का मामला रहता है। लेकिन इसका इलाज अमूमी तौर पर किस तरह से किया जाता है? इसका इलाज अक्सर व बेशतर जिस तरह से किया जाता है वो ये कि कब्ज तोड़ने की दवा खाई जाए। जब कब्ज तोड़ने की दवा इस्तेमाल की जाती है तो उसकी वजह से कब्ज जो है वो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिलता है, कब्ज रफा हो जाती है, लेकिन कब्ज की वजह रफा नहीं होती। लिहाजा इसका इलाज इस तरह से करना जरूरी है कि आपके ऊपर कब्ज जो है वो कब्ज क्योर हो जाए, कब्ज ठीक हो जाए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कब्ज तोड़ने की कोशिश करें। जितनी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर आंतों में प्रेशर बिल्ड होता है और आंतें डायलेट होती हैं और फिर आपका फुजला नरम होके खारिज हो जाता है। जबकि अगर आप कब्ज का इलाज जो है वो चाहते हैं तो उस सूरत में आपका कब्ज बतदरीज रफा होगा, कब्ज बतदरीज बेहतर होगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर आपकी कब्ज की कैफियत ठीक हो जाएगी। अगर हम मुआजना करें किसी भी ऐसे इलाज का जो कब्ज को तोड़ने के लिए इख्तियार किया जाता है, चाहे वो तिब का हो, चाहे एलोपैथी इलाज हो और चाहे जो है वो कोई और ऐसा इलाज हो, अगर उसको देखें कि जिसमें कब्ज को तोड़ी जाती है, तोड़ा जाता है और वो इलाज जिसके अंदर कब्ज को बाकायदा क्योर किया जाता है और तिब नबवी इलाज का अगर इसका मुआवजा करें तो हमें एक बात बड़ी वाजिया मिलती है। जब हम किसी भी मुरवजा राइज तरीका इलाज से कब्ज को तोड़ते हैं तो वो आंतों में प्रेशर बिल्ट होता है और उस आंतों में प्रेशर बिल्ट होने की वजह से आंतों में प्रेशर बिल्ट होने की वजह से उसका हमें नुकसान ही मिलता है कि जब कब्ज रफा होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी दीगर दूसरी चीज़ें भी हमारे जिस्म के अंदर से मिनरल और ये चीज़ें ज़ाया होने लगती हैं और ये वेस्ट होने लगती हैं। जब ये मिनरल सारे वेस्ट होने लगते हैं, मिनरल सारे ज़ाया होने लगते हैं तो इसके नतीजा में भी कमज़ोरी पैदा होती है और आंतों में खुश्की पैदा होती है। लेकिन जब हम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कब्ज़ का इलाज करते हैं तो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जब कब्ज़ का इलाज किया जा रहा होता है तो उसमें हम ये देखते हैं, जैसे अंजीर की मिसाल ले लें। अगर अंजीर आप रोज़ाना खाते हैं तो इससे आंतों में खुश्की ख़त्म होती है और अंजीर की वजह से स्टूल इतना लूज़ नहीं होता कि आपके बहुत सारे मिनरल्स ज़ाया होने लगें। और इसके अंदर अल्लाह जल्ल शानू ने जो ग़िज़ाई अज्जा रखे हैं, उन ग़िज़ाई अज्जा से आपको मजमूई तौर पर आपकी कमज़ोरी बेहतर होती है, आपको ताकत भी मिलती है। लिहाज़ा हम उन चीज़ों पे बात करेंगे, उस इलाज पे बात करेंगे जिससे कब्ज़ वक़्ती तौर पे रफ़ा ना हो बल्कि कब्ज़ परमानेंट ठीक होने लगे। तो उसके लिए कुरान थेरेपी से जो आपको मदद मिल सकती है वो है सूरह राद, रा, आइन, दाल, पारा नंबर 13। एक मरतबा तिलावत करेंगे, दम करके पानी पी लेंगे और इसे 13 दिन तक कंटिन्यू करेंगे। अगर इस मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो इससे रफ्ता-रफ्ता आंतों की हरकत ठीक हो जाएगी और बाइल सिक्रेशन ठीक हो जाएगी और जिससे इंशाल्लाह आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अगर हम कब्ज़ को रफ़ा करना चाहते हैं तो एक
पैटर्न हम आपके सामने रखते हैं, आप उसे इख्तियार कीजिए और कुछ दिन आप उसे कंटिन्यू रखिए। सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए और जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के बैठ के इत्मीनान के साथ खाना खाएं और खाना खूब चबा के खाया जाए। खाना खाने के बाद पानी ना पिया जाए और सबसे बेहतर होगा कि सुरीद बना के खाना खाएं। शोरबे वाला सालन हो, रोटी उसके अंदर आप उसे डिप करके खाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर जौ की रोटी ज्यादा इस्तेमाल की है, गंदम का आटा शायद एक आध दफा इस्तेमाल किया, वरना पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी इस्तेमाल की। गंदम की जगह अगर हम जौ की रोटी इस्तेमाल करना शुरू करें तो इससे हमारी कब्ज बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और ऐसी ग़िज़ाएं जो कि रेशादार ग़िज़ाएं हों, फाइबर पर मुश्तमिल हों, उनके इस्तेमाल से हमें कब्ज़ का आर्ज़ा हमारा ठीक हो जाता है, कब्ज़ का आर्ज़ा कायम नहीं रहता। जिनको मुस्तकिल कब्ज़ है, उसकी वजह से तबखीर का इश्यू है, उसकी वजह से बवासीर का इश्यू है, वो 3 अदद अंजीर रोज़ाना रात दूध में उबाल लें, दूध पी लें और अंजीर खा लें। तो अगर हम ये चंद एक काम मुस्तकिल करें और कुछ अरसा इस तरतीब के ऊपर चलना शुरू करें, खाना खूब चबा के खाएँ, खाना खाने से पहले पानी पी लें, उसके बाद पानी ना पिएँ और इत्मीनान के साथ बैठ के खाना खाएँ और सुरीद बनाकर खाना खाएँ और वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें फाइबर आपको ज़्यादा मिलती है और सूरह रात की तिलावत करें, 2 हफ्ते करें, तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा कब्ज़ का आर्ज़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा और हमें कब्ज़ को तोड़ने के लिए किसी भी आर्टिफ़िशियल ज़रिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी भी मर्ज़ के अंदर अगर आप इस तर्ज़ को इख्तियार करेंगे, तो आपका जितना कब्ज़ का इश्यू बेहतर रहेगा, उतनी ज़्यादा अगर आपको शुगर है, तो शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, वो ठीक हो जाएगा, अगर आपको नींद नहीं आती, तो आपके वो इश्यू सॉल्व हो जाएँगे। इस तरह से आपके बहुत सारे इश्यू सॉल्व होना शुरू हो जाएँगे। अल्लाह जल्ल शाअनहू हमें हर तरह के मसाइल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इख्तियार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक-एक लम्हे को हमारे लिए रहमत का बाइस बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।